Hi everyone, you're watching InfoVenue. I'm Abbas, and in this video, I'm going to have a candid discussion with Anshika Malhotra. She's working as a copywriter. Topic of this discussion is career in copywriting or content writing. So if you are looking forward to make a career in copywriting or content writing, then this video is for you. If you're new to this channel, please do subscribe and hit the bell icon for more informative and educational videos. So let's get started. Hi Anshika, how are you? Welcome to InfoVenue YouTube channel. Hi Abbas, I'm great. Thank you for having me here. Thanks for joining in. Anshika, you can start with your introduction. You can introduce yourself to our audience. So I'm Anshika Malhotra. I'm a copywriter in Ferns and Peters for now, and I started my journey 3 years back. तो जब मैंने start किया था, I started from a travel-based startup. There I started as a content writer. So since it was quite new to me, since digital marketing was quite new to me, तो मैंने जब शुरू किया था, it was quite a bumpy road for me. Like I used to write a lot of articles in a day. तो मैंने दोनों English और हिंदी में लिखना शुरू किया था. So the benefit these guys have with me was that I could write both in English and Hindi. So that's how I started my journey. And after that, I realized कि I think I should explore more और digital marketing जो है it's quite a world in itself. तो मैंने सोचा why not move on to some other things. तो उसके बाद I switched to Unipro. So Unipro is an education based digital marketing agency that is currently handling College Dekho. तो it was a good platform for me. मैं वहाँ पे I was working as a social media executive there. So I used to handle clients like IMI and ITM and other educational institutions. And उनका social media planning, उनका social media posting and everything, anything that is included for an executive that I used to do, and I used to strategize for their social media basically. After that I realized कि यार अगर मैं compare करूँ तो I do like writing a lot, but इतना नहीं कि मैं content writing करूँ, but इतना कम भी नहीं कि मैं एकदम clerical posting पे ही आ जाऊँ. तो I needed to find that middle ground जहाँ पे दोनों हो in balance, and writing का part the way I wanted it to be should be there. So I switched to Social Wash. So Social Wash is a digital marketing agency which is handling very big clients. So during my time in Social Wash, I was handling clients like Sunflame, जिस पे मतलब इंडिया की हर मम्मी शायद खाना बनाती है. And then we also had ATS on board. So ATS is a real estate company जिसके flats नोएडा, गुड़गांव, you must have seen it anywhere and everywhere. So and apart from that, I also had a chance to work on clients like OnePlus and Ghana. So there, since I was a content strategist, तो मेरे पास बहुत बड़ा avenue था. मतलब content anywhere and everywhere. Like it was not only in social media, but also for the websites, the product description for that matter, the SEO blogs and web blogs. तो content emailers, तो मतलब content जहाँ पे भी रहता था, I was there. And I also got a chance to write scripts for Ghana. Ghana तो मतलब I think we all are very familiar to the jingle बस बजना चाहिए गाना. तो Ghana, हाँ. हाँ, so it's quite a brand in itself. So yeah, मतलब as a content strategist in Social Wash, my learning was quite great. And then तो आपने स्टार्ट मतलब किया था एज अ कंटेंट राइटर सिर्फ लिखने से, एंड देन एक्सप्लोर करते करते फिर सोशल मीडिया एंड अदर चीज़ों को भी एक्सप्लोर किया. हाँ जी बिल्कुल. तो सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव एंड देन कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट. अभी फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, नाउ इज द टाइम टू take the next step in my journey. तो मैंने सोशल वॉश छोड़ के आई थॉट कि यार लेट्स एक्सप्लोर सम इन हाउस कंपनी. तो उससे क्या रहेगा कि आई वुड हैव वन कंपनी, वन प्रोडक्ट, एंड the niche would be very defined, but I'll have
I'll have an exposure for 360-degree marketing. So that's how I landed up to Ferns and Petals. And in Ferns and Petals, I am working as a copywriter in the content and brand marketing team. And तो मतलब that's how I'm here right now with you, of course. ओके सो जैसे कि आपने बताया कि आप एज अ कॉपी राइटर काम कर रही हैं, सो सबसे पहला एक क्वेश्चन तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि बेसिक बिल्कुल ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें बिल्कुल नहीं पता कि कॉपी राइटिंग है क्या है आखिर, और फ़र्क क्या है मतलब कॉपी राइटिंग में एंड कंटेंट राइटिंग में. ठीक है. तो अगर मैं आपको लेमैन की लैंग्वेज में बताऊँ तो let's start with the very basic. You all must have scrolled through your Instagram, LinkedIn. आप मतलब पोस्ट देखते होंगे, एक आपको विजुअल दिखता होगा, एंड देन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कॉपी ओवर इट. कुछ ऐसा लिखा है जिसको देख के आपको हंसी आ रही है, या समथिंग दैट यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स. एंड लाइक लेट्स पिक वेरी फेमस ब्रांड्स ओनली. आप जोमैटो का अगर आप पेज देखते हैं तो इट्स वेरी बेसिक पोस्ट व्हाट यू सी कि एक रेड कलर का बैकग्राउंड है, एंड देन देयर इज वन कॉपी रिटन ओवर इट. And I don't know how many thousands of comments people do on that post, and how much they share with everybody, how much they share on their stories. So that's the copy we write. तो अगर मैं टेक्निकलिटी पे आती हूँ तो कॉपी राइटिंग के दो मोटिव्स रहते हैं. तो the first motive is to build the brand. Like whatever brand you're working for example I am in Ferns and Petals, so my agenda will be कि मैं अपनी कॉपी से एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकूँ that for the people who can relate to my brand, who like my brand, and who would like to buy purchase things from my brand. So with that I come to the second objective, that is to sell your product. तो बेसिकली कॉपी राइटिंग के दो मेजर अम्ब्रेलाज, दो मेजर जो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं वो यही होता है. इट्स फर्स्ट इज ब्रांड बिल्डिंग एंड द सेकंड वन इज टू सेल योर प्रोडक्ट. तो टू सेल योर प्रोडक्ट. हाँ जी. तो कॉपी राइटिंग बेसिकली एक CTA देता है. इट्स बेसिकली इट गिव्स यू कॉल टू एक्शन कि ऐसा कुछ लिख दो कि लोग पढ़ के या तो आपका प्रोडक्ट खरीद ले, या फिर ऐसा कुछ लिख दो या अट्रैक्ट हो. या बिल्कुल, या फिर ऐसा कुछ लिख दो कि एक कम्युनिटी बन जाए कि यार क्या मस्त ब्रांड है यार, इसको फॉलो करना चाहिए. सो एंड इफ आई कंपेयर इट टू कंटेंट राइटिंग, देखिए ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ वर्ड्स का डिफरेंस है कि हम एक आर्टिकल अगर लिखते हैं, दैट्स कंटेंट राइटिंग. बेसिकली एक लॉन्ग फॉर्म राइटिंग होती है, लॉन्ग फॉर्म राइटिंग होती है. हाँ जी. तो जिसको हम LFCs कहते हैं शॉर्ट में. लाइक वी डिजिटल मार्केटिंग पीपल लाइक टू अब्रीविएट ईच एंड एवरीथिंग, सो दैट्स व्हाट वी कॉल इट LFC. तो लॉन्ग फॉर्म राइटिंग में क्या रहता है, आप लोग जब गूगल करते हैं तो कुछ भी आप सर्च करते हैं, लेट्स सी वैलेंटाइंस, सपोज वैलेंटाइंस इज अराउंड द कॉर्नर एंड लाइक यू वांट टू फाइंड द राइट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वन. तो आप ढूंढ रहे हैं कि बेस्ट गिफ्ट्स टू गिव माय गर्लफ्रेंड. तो आप वो लिखेंगे तो आपको बहुत बड़े बड़े ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे कि 10 things that you could buy या 10 unusual things. Yeah, exactly. So those web blogs, those SEO blogs, वो जो रहती है that's content writing. And जो major agenda होता है content writing का, that is to educate the consumers about the product or the brand. So it's basically the information. Per se, if I'll just say, take the example of my company only. Like Ferns and Petals sell many personalized gifts and flowers also, and cakes also. So there's a variety of gifts that we have in our company. तो हम लोग क्या करेंगे, 10 गिफ्ट्स में आपको एक पैराग्राफ जो होगा या 1 पॉइंट, अगर लिस्टिकल्स की फॉर्म में अगर हम देखें तो टॉप 10 में फर्स्ट पे हम आपको शायद रोज के लिए सजेस्ट कर देंगे कि यू शुड ऑलवेज गिव अ रोज बिकॉज दिस एंड रोज इज ऑलवेज अ गुड ऑप्शन, सेफर, ब्ला ब्ला. And the second could be कि you could also give something personalized to create the nostalgia, yeah, to create a memory for your loved one. And the third could be you can always add up a sugar rush to your loved one's life with a cake by celebrating the day.
So that's how हम आपको we are informing you, we are giving you the information that you were looking for on Google, and at the same time we are selling our product, but not very directly. But अगर मैं कॉपी की बात करती हूँ तो कॉपीज 400 वर्ड का एक ब्लॉग नहीं है. इट्स मोर और लेस इट्स लाइक 4 to 5 क्रिस्प एंड कंसाइज होता है काफी. हाँ अगर जी. आप कॉपीराइटिंग की एग्जैक्टली. तो हाँ, तो मतलब इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि जो बात कंटेंट राइटिंग में जो बात आप आर्टिकल के थ्रू 400 वर्ड्स में समझा रहे हो, आप कैसे, मतलब हाउ यू आर नरेटिंग द स्टोरी ऑफ अ ब्रांड इन 4 to 5 वर्ड्स. So brevity, precision Right. is what people look in copies. कि कैसे आप 400 वर्ड्स की जगह 4 वर्ड्स के अंदर आप बता रहे हैं कि भाई ये प्रोडक्ट है, ले लो इसे. So that's the major difference between both of them. ओके. सो अगर जैसे कोई 12th क्लास का स्टूडेंट है या इवन ग्रेजुएशन किसी ने कर ली है, तो क्या बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होती है एक कॉपीराइटर बनने के लिए? और इसी में मैं ऐड करना चाहूँगा कि क्या कोई ऐसा कैंडिडेट जिसने मतलब कंटेंट राइटिंग में मतलब उसने डिग्री नहीं की है, मतलब कि ज़्यादातर मैंने जो देखा है कि जो लोग जर्नलिज्म में अगर उन्होंने बैचलर्स किया है या क्रिएटिव राइटिंग में कोर्सेज किए हैं वही आते हैं. तो क्या कोई नॉन मतलब जो कॉपीराइटिंग फील्ड से नहीं है, किसी और फील्ड का भी एक कॉपीराइटर बन सकता है? Abbas, I think I am the perfect person. I am the perfect example to हाँ. this. I did my graduation in engineering, तो मैं B.Tech हूँ. तो given the technical background, कहाँ से मैं कहाँ copywriting में आ गई, I guess I can't explain it. But I think engineers तो they like to explore each and everything. तो I would say Right. कि very easily, even if you don't belong to any such background, कि आपने digital marketing नहीं की है या आपने content या English Right. pages for that matter नहीं किया है, then also it's totally fine for you to find your way in digital marketing. Not only copywriting, content writing, content marketing, Content writing, development, anything for that matter. तो definitely कोई educational qualification की जरूरत नहीं है. हाँ, you can see courses around, लोग कराते हैं, but what I feel, content is something that nobody can teach you as such. It's not, मतलब आपको जरूरत नहीं है. You can explore it yourself. Instagram वगैरह तो ऐसी चीजें हैं जो आप खुद देख सकते हो. Case studies, मतलब given internet is so handy nowadays, you carry internet in your hand every time. तो आप YouTube करो, Right. Google करो, you'll find things. तो कोई ज़रूरत नहीं है उसके लिए स्पेसिफिक कोर्स करने की. राइट. ओके. सो अगर एक सक्सेसफुल कॉपीराइटर किसी को बनना है या कंटेंट राइटर बनना है, तो कौन से स्किल्स हैं जो मतलब होता है ना कि ये स्किल्स तो हमारे पास होनी ही चाहिए? हाँ जी, देखिए, कोई भी काम हम करते हैं तो ऑफ कोर्स स्किल सेट एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी जॉब के लिए चाहिए होता है. कॉपी राइटिंग की या कंटेंट राइटिंग की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ आपको, इफ़ यू आर इन कंटेंट, मतलब नो मैटर इफ इट्स कॉपी राइटिंग और कंटेंट राइटिंग, देयर आर 3 सबसेट्स, देयर आर 3 बुलेट्स जिसके अंडर मैं आपको बताऊंगी. पर से लाइक फर्स्ट चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है इज योर क्रिएटिव थिंकिंग. बहुत often you might have heard of word creative, I mean, even in the market, content strategists are also known as creative strategists. So there's a reason behind it कि एक creative mind होना बहुत ज़रूरी है. कैसे 4 वर्ड्स में आप पूरे ब्रांड की स्टोरी बता रहे हैं या कैसे आप एक क्यूरियोसिटी जगा रहे हैं अपनी ऑडियंस के अंदर, वो एक क्रिएटिविटी से ही आता है. एंड व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज कि आज की डेट में जो यंगस्टर्स हैं, दे आर नॉट दे थिंक वेरी आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर क्रिएटिव बचपन से ही. आई से दैट. तो मतलब पीपल आर ऑन यूट्यूब, पीपल आर ऑन इंस्टाग्राम शोकेसिंग द क्रिएटिविटी थ्रू फैशन, थ्रू राइटिंग्स, थ्रू पोएम्स एंड अदर थिंग्स. तो लोग क्रिएटिव तो है ही. तो आई बिलीव दिस इज नॉट समथिंग जहाँ पे चैलेंज आना चाहिए. जो सेकंड चीज़ है जो हमारे हाथ में रहती है और वहाँ पे चैलेंज आ भी सकता है अगर हम नहीं करते हैं, दैट्स योर रिसर्च स्किल. तो
whenever we write a copy, ऐसा नहीं होता कि बस कुछ भी लिख दिया, वो कुछ भी कभी आता नहीं है. आपको अपना पर्सपेक्टिव नहीं लिखना है, मतलब यू नीड टू पोर्ट्रे द ब्रांड यू आर राइटिंग फॉर. मुझे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फर्न्स एंड पेटल्स की तरफ, अगर मैं फर्न्स एंड पेटल्स में हूँ तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिखना चाहती वहाँ पे, या कोई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना नहीं चाहता वहाँ पे. एवरीबडी वॉन्ट्स टू नो कि फर्न्स एंड पेटल्स क्या बोलना चाहता है. तो पेटल्स क्या बोलना चाहता है. हाँ जी, तो इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू नो योर ब्रांड वेल एंड उसके अराउंड आप रिसर्च करें. पर से इफ यू वांट टू राइट समथिंग अबाउट केक्स, इट इज ऑलवेज बेटर कि आप केक से रिलेटेड कुछ सर्च करें. लाइक यू शुड नो कि भाई केक है तो केक के अंदर क्या चीज़ होती है, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रूफल्स और चॉकलेट केक, या लाइक इज दिस व्हाट माय ऑडियंस वांट्स टू नो. तो ऐसी रिसर्च ज़रूरी रहती है. बट दैट इज़ ऑल्सो डूएबल बिकॉज अगेन इंटरनेट हर चीज़ का आंसर है. मतलब you Google things, Right. You are on different social media platforms, so it's very handy for you to research nowadays. तो एंड आई थिंक इस जॉब की सबसे बढ़िया बात तो यही है, जो लोग अपने लेजर आवर्स में करते हैं वो हमें ऑफिस आवर्स में करना होता है. लाइक वी नीड टू स्क्रॉल आवर इंस्टाग्राम. मतलब whenever I am in my office, like right now it's work from home due to obvious conditions, but जब मैं काम करती थी ऑफिस में, it's like कि I am the person who's having an access to Instagram. बाकी किसी के पास नहीं है. It's the most fun job you can have. तो Right. और ऐसी रिसर्च नहीं है that you need to do a PhD on something. You don't need a doctorate for it. बस हल्का मतलब थोड़ा LinkedIn पे कैसा चल रहा है, like LinkedIn प्लेटफॉर्म क्या चल रहा है. हाँ, LinkedIn के प्लेटफॉर्म के कॉम्पिटिटर्स को भी अपने हम देख सकते हैं. हाँ, कि वो क्या पोस्ट कर रहे हैं. एग्जैक्टली, दैट्स व्हेन आई से कि आपको अपने ब्रांड के बारे में पता होना चाहिए. दैट इंक्लूड्स दैट ऑल्सो कि भाई अगर मेरा ब्रांड FNP है तो हु आर द कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स एंड व्हाट दे आर डूइंग, एंड इफ दे आर डूइंग समथिंग बेटर तो व्हाट आई नीड टू चेंज अकॉर्डिंगली. दैट्स द रिसर्च आई एम टॉकिंग अबाउट. And the third bulwark is language. तो Language, right. एक certain level of command on your language is important. I won't lie कि English या हिंदी for that matter, given कि हम इंडिया में रहते हैं and there are a lot of brands who interact with their audience in हिंदी also. तो लैंग्वेज पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है. मैं ये नहीं कहती कि आप स्कॉलर होने चाहिए हो. मैं ये नहीं कहती कि आपकी वोकैबुलरी एकदम ताबड़तोड़ होनी चाहिए. आई वुड से कि सिंपलर वर्ड्स जो होते हैं दे आर मोर अंडरस्टैंडेबल एंड दे कन्वे बेटर. तो लैंग्वेज से कहने का मतलब यही है कि इवन इफ यू आर नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश और हिंदी, आप लिखते हैं जब, तो उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि यार इस शायद इस सेंटेंस का मतलब ये है या फिर ये है. कोई दो बात नहीं होनी चाहिए. तो हाँ, मतलब एग्जैक्टली वही आना चाहिए जो आप पोर्ट्रे करना चाहते हैं. तो दैट्स व्हाट आई मेंट बाय लैंग्वेज पे कमांड होना. तो दैट्स क्वाइट इम्पोर्टेंट. एंड अगेन आई वुड रियली लाइक टू रिपीट इट, क्योंकि देर आर पीपल हु थिंक कि अरे नहीं यार इसमें तो इंग्लिश चाहिए होगी और हमारी तो इंग्लिश इतनी अच्छी है नहीं. बट वही मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इट्स वेरी मतलब एक सिंपल लैंग्वेज. मतलब आपकी ऑडियंस को भी शायद उतनी इंग्लिश आती है जितनी आपको आती है, या उतनी हिंदी आती है जितनी आपको आती है. तो आप वही लिखो जो उनको समझ में आएगी. ऐसे एकदम हेवी वर्ड्स डाल के कोई मतलब कि आपको शेक्सपियर नहीं बनना है. मतलब जस्ट लाइक शशि थरूर की जैसे वोकैबुलरी होती है, मतलब exactly. जो लोगों को सर्च करनी पड़ती है. एग्जैक्टली मतलब और ग्रामर कितनी इम्पोर्टेंट होती है. जैसे ग्रामर हमारे मतलब वो भी तो काफी इम्पोर्टेंट होती होगी. हाँ, तो व्हेन आई से सिंपल इंग्लिश, आई वुड से कि वोकैबुलरी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि लोग डिक्शनरी पकड़ के बैठे हैं, लेकिन टेंसेस इतने गलत नहीं होने चाहिए कि लोग अनफॉलो कर रहे हैं आपको. तो दैट्स द आइडिया कि गेट द बेसिक्स राइट. जो हम 6th-7th में ग्रामर पढ़ते हैं अपनी, उसको ध्यान रखिए. हाँ, कई बार गलतियाँ होती है. मतलब इवन टुडे आई मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, बट आई थिंक यू इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड दैट्स द आइडिया कि आप परफेक्शनिस्ट बन के मत आइए जॉब पे. come with a learning point of view, and you'll definitely learn in the process. एंड इवन परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता. इवन इंग्लिश भी, जो इंग्लिश टीचर्स भी होते होंगे उनकी भी बिल्कुल 100% तो नहीं होती होगी. एग्जैक्टली, मतलब दैट्स द आइडिया. मतलब हम इंडिया में रहते हैं एंड
हमारी मदर लैंग्वेज नहीं है, मदर टंग नहीं है, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि हम वी कांट बी दैट फ्लुएंट इन इंग्लिश जितना लोग सोचते हैं कि होना पड़ता है इस जॉब के लिए। राइट। ओके, सो एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज़रूर स्टूडेंट्स सोचते हैं या एस्पिरेंट्स सोचते हैं कि पैसे, मतलब सैलरी तो ऐसी चीज़ है कि सबके जहन में होता है कि सैलरी कितनी कमाएंगे हम इस कोर्स के बाद। तो एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि अगर हमने जस्ट मतलब स्टार्ट कर रहे हैं एज अ फ्रेशर, हाउ मच वी कैन अर्न, एंड लाइक 1 साल बाद या 2-3 साल बाद हम कितना कमा सकते हैं? मतलब यू कैन गिव एग्जांपल्स ऑफ कि इस पोजीशन पे आपको इतना मिल सकता है, या इफ समवन इज डूइंग फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग, तो उसमें ऐसा होता है कि 1000 वर्ड्स के आपको लाइक इतने पैसे मिलेंगे, इतना रुपये पर पैसा, तो वो उसके बारे में आप ज़रूर बताएं। हाँ, तो अब्बास देखो, सैलरी क्या रहता है ना कि इट्स अ वेरी इट्स अ रेंज। ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक नंबर आई से एंड यू विल डेफिनेटली गोना गेट दैट, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना, मतलब कि कितना आप अपने आप को पोर्ट्रे कर सकते हैं एंड हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर इन योर राइटिंग। मैं अगर अपनी बात कहूँ तो इवन आई यूज टू लुक फॉर द सेम क्वेश्चन कि यार इसमें तो पैसे हैं ही नहीं। मतलब व्हेन आई स्टार्टेड आई वाज लाइक यार मैं तो कुछ कमा ही नहीं रही, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। हैड आई बीन चोजन समथिंग फ्रॉम माय बीटेक, तो बीटेक मतलब एनी जॉब आफ्टर बीटेक, तो मुझे शायद ज़्यादा मिल जाता, बट ऐसा नहीं है। मतलब यू नीड टू होल्ड योर हॉर्सेस फॉर अ वाइल एंड थोड़ा पेशेंस इसमें ज़रूरी है। लाइक व्हेनेवर यू स्टार्ट, ऐसा रहता है कि आपकी सैलरी कुड बी एनीवेयर बिटवीन 5 to 20,000 अ मंथ। तो मतलब 5,000 देखा जाए तो इतनी नहीं होती है, बट 5,000 से भी लोग स्टार्ट करते हैं फॉर द सिंपल रीजन कि इस टाइम पीरियड में मैं सीख रहा हूँ और मैं सीखने के पैसे ले रहा हूँ। तो अगर आप लाइक इंटर्नशिप्स आप स्टार्ट कर सकते हो अपने कॉलेज के टाइम पे। एग्जैक्टली। तो मतलब आप उस माइंडसेट से जाइए कि 5,000 मुझे काम करने के लिए नहीं मिल रहे, मुझे वो लोग सिखा रहे हैं, उसके भी मुझे पैसे दे रहे हैं, सिखाने के मिल रहे हैं। हाँ, तो इफ यू गो विद दैट पॉजिटिव माइंडसेट, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू अचीव अ लॉट इन दिस फील्ड, क्योंकि वो शुरू का पीरियड ही होता है व्हेन यू कैन लर्न एंड उसके लिए भी आई थिंक जब आप कुछ नहीं अर्न कर रहे हैं तो मतलब व्हेन आई स्टार्टेड विद 5,000 ओनली एंड आई वाज लाइक यार अरे मुझे तो, मैं घर बैठी हूँ और मुझे तो सीखने को मिल रहा है और उसमें भी मुझे पैसे मिल रहे हैं, व्हाट्स द हार्म? तो एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। बट मतलब इफ यू सी योरसेल्फ, मतलब मैं बोलूँ 5 से 20,000 रुपया महीना, अगर आप थोड़ा टाइम बाद, अगर आप 2 to 3 years बाद अपनी जर्नी देखते हैं तो यू विल बी इजीली समवेयर अराउंड 40 to 60,000 पर मंथ। उसकी रेंज में आप आराम से आ जाएंगे अगर आप कंसिस्टेंट हैं एंड कंसिस्टेंटली आप सीख रहे हैं। कंसिस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि आप स्टैग्नेंट हो गए एक जगह पे। अगर आपको लग रहा है इसके आगे लर्निंग नहीं है, आई थिंक यू शुड डेफिनेटली मूव आउट ऑफ द प्लेस एंड गो समवेयर जहाँ पे आपकी लर्निंग बढ़ती है, because that is only how you're going to enhance your learning curve and your salary curve also. तो that's important. Stagnant मत रहिए बिल्कुल भी। और 5-6 साल के बाद I can tell you, I have seen people, I have friends who are easily earning a lakh or so in a month. तो स्टार्टिंग तो हर करियर में मैंने देखा है कि कम सैलरी से स्टार्ट होता है, लेकिन विद टाइम एक्सपीरियंस के साथ यू विल स्टार्ट अर्निंग मोर। बिल्कुल, मतलब अगर मैं इंजीनियरिंग से भी कंपेयर करूं, जैसे हमारे मम्मी पापा दे आर वेरी एडमेंट ऑन सब्जेक्ट्स लाइक इंजीनियरिंग एंड मेडिकल। इफ आई स्टार्ट इंजीनियरिंग, सिंस मेरा बैकग्राउंड है तो आई विल पिक अप एग्जांपल्स फ्रॉम दैट आल्सो। इफ यू स्टार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग आल्सो, पीपल आर हायर्ड ऑन अ बेसिक सैलरी ऑफ 18 to 20,000 आल्सो। तो मतलब राइट, मतलब ऐसा नहीं है कि इट्स अ वेरी डिमीनिंग जॉब। बिल्कुल मैं बता रही हूँ, कॉपी राइटिंग इज द फ्यूचर। If I tell you the if I pick up the facts, I would like to tell you कि ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आती है फ्यूचर ऑफ वर्क करके, तो उसमें they have told us about the 21st century jobs। तो 21st century jobs में टॉप 10 के अंदर डिजिटल मार्केटिंग आती है। तो आई मीन दिस इज द फ्यूचर। तो मैंने मतलब आई हैवंट सीन एनी जॉब्स रिलेटेड टू नेटवर्किंग और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या कुछ, बट मैंने देखा है कि डिजिटल मार्केटिंग की जॉब्स जो टॉप 10 में आती है। तो इफ़ यू हैव द राइट स्किल सेट फॉर इट, जैसे कि मैंने बताया, तो आई एम टेलिंग यू स्काई इज द लिमिट।
राइट. इवन डिजिटल मार्केटिंग भी इतना मतलब बड़ा एरिया है कि आप उसमें भी चूज कर सकते हैं अपना कि कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट बन जाओ, फेसबुक एड्स मैनेजर आप बन सकते हो, या गूगल एड्स एक्सपर्ट, सोशल मीडिया. या मतलब दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज. मतलब कि अगर आपको लगता है कि आप राइटिंग में नहीं है, आई एम हियर स्पेसिफिकली टू टेल यू अबाउट राइटिंग पार्ट, बिकॉज मेरा जो पूरा लेन है वो मेरी पूरी राइटिंग में रही है. अदरवाइज अगर आप उसमें भी नहीं है तो यू कैन इजीली, मतलब अब्बास, आई थिंक यू योरसेल्फ इज इनटू डिजिटल मार्केटिंग. तो आई थिंक देयर आर फील्ड्स जहाँ मीडिया, एड्स, लीड जनरेशन, देयर आर सो मच सो इन डिजिटल मार्केटिंग टू एक्सप्लोर. But yeah, if I come back to content, so content development is a huge part in digital marketing, and nothing is going to happen without content. तो आपकी वैल्यू नहीं खत्म होने वाली, बल्कि आने वाले टाइम में बढ़ने ही वाली है. So that's इवन मैं ये चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अगर मतलब कोई लिखने में इतना अच्छा नहीं है तो वो वीडियो कंटेंट बना सकते हैं. लाइक नाउ यू मस्ट बी वॉचिंग अस, तो एक ये वीडियो कंटेंट है. या अगर आप बोल सकते हो तो आप पॉडकास्ट बना सकते हो. तो कंटेंट की एक लिमिट नहीं है कि आप खाली लिख कर ही बनाओगे, तो आप वीडियो के फॉर्म में पॉडकास्ट वॉट एवर यू लाइक बना सकते हो. हाँ जी, बिल्कुल. अभी मतलब अभी मैं अब्बास से यही डिस्कस कर रही थी कि दिस इज मतलब राइटिंग इज नॉट द ओनली कंटेंट आई एम सपोज टू डू. मैं कंटेंट में जैसे कि बता रहे हैं कि वीडियो कंटेंट बनता है, पॉडकास्ट होता है. तो आई हैव आल्सो स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग कि अच्छा यार, वीडियो भी तो एक तरीके का कंटेंट है, और एज अब्बास सेड कि पॉडकास्ट भी तो एक तरीके का कंटेंट है. तो देयर आर फील्ड्स जो आप मतलब कि अपने लिए एक्सप्लोर कर सकते हैं. So over a period of time, I have also explored a lot of things in the market. So I would also want you to explore for you what is best for you. So yeah. Okay, so अंशिका, I think मैंने आपको बहुत सारा टाइम लिया, लेकिन एक फाइनल जो मैं हर गेस्ट से पूछता हूँ कि एक फाइनल आप जो कोई टिप्स देना चाहें यंग एस्पिरेंट्स को, कोई अपने एडवाइस, अगर वो कॉपी राइटिंग में या कंटेंट राइटिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं. देखो, सबसे पहले मतलब इफ आई सी माई सेल्फ 3 years बैक, मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत ही हेजिटेंट रही हूँ. मतलब आई हैव बीन वेरी रिलक्टेंट कि यार पता नहीं मैं वहाँ पे काम कर पाऊंगी कि नहीं, पता नहीं वो लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, पता नहीं मैं कुछ सीख सकती हूँ कि नहीं. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू शो अप, पुट योर सेल्फ आउट देयर, बी कॉन्फिडेंट इनफ टू गो फॉर द लर्निंग पर्सपेक्टिव. ऑफ कोर्स डोंट गो कि अरे मुझे तो मतलब कुछ आता ही नहीं है, मेरे को तो कोई लेगा ही नहीं. अरे नहीं आता कोई बात नहीं. इफ यू हैव दैट विल टू लर्न, आई थिंक इट्स परफेक्ट. जस्ट गो एंड एक्सप्लोर. व्हाट आई वुड वांट टू से कि मतलब पॉजिटिव चीज़ ये है कि एज आई टोल्ड यू कि फ्यूचर है कंटेंट. तो मैं आपको बता दूं कि आज के डेट में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज आर लुकिंग फॉर इंटर्न्स at all the times. Like if you open LinkedIn, you will see openings everywhere. Go and try your hands on that. But मतलब अगर नहीं समझ में आया internship में, you can always take a step back and explore something else. But why not? मतलब आप try तो कीजिए. It's really simple actually. तो this is one thing I would want to say कि be confident enough to show up, to go and explore things for you. एंड रिलक्टेंट मत रहिए प्लीज. घर पे बैठे बैठे वैसे भी कुछ नहीं होने वाले, कुछ ना से कुछ सही. तो दिस इज व्हाट आई रियली वांट द यंगस्टर्स टू अंडरस्टैंड कि निकलना बहुत जरूरी है, शो अप करना बहुत जरूरी है. एंड वन थिंग एंड अनदर थिंग व्हिच आई वांट टू से इज यार, अभी ना पैसा मत देखो. मतलब 1 लाख में पहली जॉब नहीं मिलती है. हाँ मिलती होगी, बट सबकी जर्नीज अलग अलग होती है. So if I say this is the future, और अभी शायद इतना लोग नहीं अभी भी ponder कर पा रहे. Maybe your parents are not going to understand. Like when I started the job of Abbas, I would like to say my father couldn't understand कि यार ये I don't understand कि this girl did engineering and then now she's engineering करके एक content writing में कैसे आ गई. Exactly. And I remember the day I was looking at a video, वो एक pass the brush challenge करके I think challenge आया था, and I was looking at that video on YouTube, and पापा कह रहे हैं कि तू free है क्या. मैंने कहा नहीं, मैं काम कर रही हूँ. कि ये तेरा काम है engineering करके. I mean what are you looking at? So I couldn't explain him at that time, but today I can surely say कि यार मतलब literally आजकल तो digital marketing के courses है. मतलब there are courses in IIMs and IITs for that. मतलब look at it.
had I did my graduation in digital marketing from IIT or IM, I think मेरे पापा बड़े proudly घूम रहे होते हैं. But I think now he also understands कि यार इस चीज़ की बहुत value and every मतलब he brags about it a lot कि मेरी बेटी digital marketing में है and this and that. So I think that's a very gradual process. So you need to trust in yourself first and parents को अपने आप समझ में आ जाएगा कि ओ ये future है. मतलब हमें समझ नहीं आ रहा. वो they are obviously 50 years back तो उनको लगता है कि अरे सिविल सर्वेंट होना या इंजीनियर या डॉक्टर होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है. हाँ यही करियर्स हैं. हाँ एग्जैक्टली. बट मैं अपना भी एग्जांपल इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जब जैसे मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, लाइक मैंने MBA करने के बाद ही किया था, मतलब तो लोग मुझे समझते थे कि मतलब मेरे घर वाले जैसे मेरी मदर एंड फादर बोलते थे कि ये MBA करके ये क्या यूट्यूब कर रहा है, मतलब ये यूट्यूबर क्यों बन गया है. और जैसे मेरे रिश्तेदार थे वो भी मुझे बोलने लगे थे मतलब ये तो इसे जॉब वॉब नहीं करनी, ये मतलब वो है निकम्मा है, मतलब ये क्योंकि ये यूट्यूब कर रहा है. लेकिन जब मेरी ऑडियंस बिल्ड होने लगी, मैं मतलब बनाता गया, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया लोगों पे, तो फिर मेरे पेरेंट्स को जैसे होता है ना, पहले गली मोहल्ले वालों ने या जो लोग देखने लगे थे कि अरे आपके बेटे को हमने उस पर देखा, तो फिर लगा मतलब मेरे पेरेंट्स को भी कि मतलब ये कुछ कर रहा है. एंड देन जब चैनल मोनेटाइज हुआ, पैसे आने लगे, तो घर वाले मतलब फिर तो और चुप हो गए कि अच्छा वीडियो बना के भी मतलब कुछ कर सकते हो. exactly. तो यही होता है कि स्टार्टिंग में मतलब पेरेंट्स और लोग जो होते हैं, कुछ आप अलग करो तो इतना वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बट विद टाइम अगर आप मतलब सक्सीड हो जाओगे, कुछ उसमें आगे बढ़ोगे, तो डेफिनेटली साथ देने लगते हैं लोग. बिल्कुल. अब्बास मैं तो कहूंगी कि आप एक वीडियो अपने YouTube हाउ डू यू मोनेटाइज योर YouTube उस पे तो जरूर ही बना दीजिएगा. मैं तो जरूर देखूंगी. मैंने आई थिंक एक बना रखी है, तो I'll share that with me. हाँ मतलब because this is something वही मतलब you are reaching out to people, you are networking with people. I think that is a bigger skill than anything else for me. मतलब obviously हर चीज़ important है, but हाँ जैसे कि अब्बास ने बोला कि थोड़ा सा लगता है you need to go against the wind, but over the period of time parents भी समझ जाते हैं कि हाँ अच्छा कुछ तो कर रहा है मेरा बच्चा. So that. सो अंशिका, आई वुड लाइक टू थैंक यू, लाइक आपने बहुत सारा अपना टाइम दिया अपने बिजी शेड्यूल में से, एंड आई होप ये जो इंटरव्यू है कि ज़रूर उन लोगों को हेल्प करेगा जो कॉपी राइटिंग में या कंटेंट राइटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं. एंड अगेन आई वुड लाइक टू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. Thank you so much. So I think it's you can, if you want to say anything, you can. For me. I think it's an opportunity for me. मतलब I remember the time when I left BTech and I had a career gap because I was preparing for some exams. तो मुझे समझ नहीं आया था, मुझे लगा था यार मुझे कभी जॉब मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी. तो I was very disheartened at that time. But I think videos like yours, Abbas, helped me कि अरे नहीं यार मतलब this is not the end of the world and you can definitely do a lot. So I think videos like yours helped me through it and helped me sail through it. And I would like to thank you to give a direction to be a lighthouse for all the students out there. Thank you so much. ओके, सो एक लास्ट सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट. तो आई थिंक मैं अंशिका आपको बोलूँगा कि आप सब्सक्राइब के लिए बोलो, क्योंकि आज की आप गेस्ट हो. हाँ जी बिल्कुल. मैं मतलब ये अब्बास के कहने से ही नहीं बोल रही हूँ. आई वुड से कि आई स्क्रॉल थ्रू द पेज ऑफ इन्फो वेन्यू एंड आई सॉ कि इट्स नॉट कि आपको कॉपी राइटिंग या कंटेंट राइटिंग ही करनी है तो आप देख सकते हैं, बट अब्बास ने काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस बनाई है जिसके थ्रू आप अपना करियर की एक लाइन जो है चूज कर सकते हैं. लाइक आई हैव सीन वन फिजियोथेरेपी एंड डिग्रीज विच यू कैन टेक फ्रॉम फॉरेन लैंड्स. तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि कुछ मिस आउट ना हो जाए. कई बार क्या होता है हमें ना पता ही नहीं होता कि ऐसी कोई चीज़ जिंदगी में एग्जिस्ट करती है. So I think this is a channel where you can know that. So do subscribe it, do watch videos, and do promote it as well. Okay, so thanks Anshika. Thank you Abbas. Thank you for having me. Namaste.